Assalamu alaikum everyone. Welcome to episode 3 of K2K Cricket PSL Series 2017. Today it's me, AZ Khwaja, hosting the program as Kaleem is busy having partying in London and everywhere else. And we have a very special guest today who needs no introduction. She is the co-presenter of HPL PSL, Miss Zainab Abbas. Zainab, how are you? Ji, Assalamu alaikum. I am fine. Hello to everybody. Just want to say thank you for making time for us in your really busy schedule. आपने हमें time दिया. We are really grateful to you. No problem. और कैसा जा रहा PSL? How is it compared to the first season PSL 2? How do you feel it's changed? It's really good. I feel कि इस दफा जब पहले PSL start हुआ था तो one of the things was उस वक्त it wasn't a brand. Not many people knew about it. This time people are obviously more aware. All the franchises have done their campaigning and promotion and they've come up with their own songs. मतलब hype जो है वो उस तरह से create हुई है. तो I feel कि उसकी वजह से obviously more people are tuned in and they're all looking forward to the matches. फिर आपकी बीच में city wars भी हैं which you can see Karachi versus Lahore, Zalmis वगैरह मतलब ये सारा वो तो which is good for the tournament and it's been good so far. I think opening बहुत अच्छी थी. A lot of people were complaining last year about the opening and saying कि जी बहुत ही dull opening थी और कुछ भी नहीं था और मतलब इतना पैसा ज़ाया किया है. I think इस दफ़ा the concept was really good. Implement भी अच्छा किया गया. पाकिस्तान की जो main जो singers हैं 90s के singers फिर जुनैद जमशेद को tribute नुसरत के गाने ये वो तो मतलब a lot of things, everything that's Pakistani was displayed over there and the fireworks were amazing. मतलब if you were lucky enough to witness them तो it was very well done and उसके बाद से crowds have been okay. Up and down ही होता है. Working day होता है तो थोड़े कम आते हैं. ज़ल्मीज़ का मैच होता है तो सारे पठान आ जाते हैं देखने के लिए तो वो उससे थोड़ी सी जो है व्यूअरशिप भी आपकी crowds वगैरह से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये है अभी तक तो it's going fine and I think if the final happens in Lahore then nothing like it. That would be truly special. अच्छा Zainab, the burning question जो हर जगह breaking news चल रही है, ticker चल रहे हैं. Who is Zainab Abbas truly supporting in Pakistan Super League? इसका जवाब दे दें. Why are you putting me in this spot, huh? I'm supposed to be neutral. I'm the host, so I'm neutral. यार चलो आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं but we all know that in your heart you are a Qalandar like me so it's all good. देखो I'll just admit one thing कि because I am from Lahore myself तो मेरी थोड़ी सी तो है ना जिसे कहते हैं loyalty towards Lahore थोड़ा सा मेरा soft spot ज़रूर है but having said that like मतलब obviously that thing aside when अगर कराची भी जीतेगा तो एक खुशी इस तरह से होती है या कोई पेशावर जीता है तो होती है because it's not like कि आप कोई इंडिया से खेल रहे हो whatever they're all part of Pakistan and I don't think कि हमें इसको इतना serious लेना चाहिए but for banter purpose obviously I think it's fine. It only adds to the tournament but yeah I have a soft spot for Qalandars और असल में मुझे उनका गाना बहुत पसंद है the previous one that was there Lahore Qalandars का असरार का which is my favorite. चलो आपने ऑफिशियली कह ही दिया कि आप यू आर अ कलंदर so that's good enough for me and you can interpret it the way you want. बिल्कुल मैंने इंटरप्रेट ऐसे ही किया है. ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये शर्जील खालिद वाला किस्सा तो हम चलो वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन डजंट मैटर. हु डू यू थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड शुड टेक एज पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स फॉर दोस टू? I think it's very unfortunate whatever happened. I mean, everyone has been affected on a personal level because we've all been invested in this league, not just from the management's perspective or the people who are broadcast, the people who have been following it. So I think हर एक का अपना एक sort of stake है in the tournament and it has been damaged and it's very unfortunate कि ये हुआ है. I mean हमने इतनी देर शर्जील में भी इन्वेस्ट किया है एक साल वो एक अल्लाह अल्लाह करके एक ओपनर मिला हमें मुश्किल से
के जो हमें स्टार्ट दे रहा था, बट खैर आई मीन दैट इज अनफॉर्चुनेट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आई होप जस्टिस प्रिवेल्स एंड यू नो पीपल अदर प्लेयर्स लर्न फ्रॉम दिस, दैट्स व्हाट यू वांट एट लीस्ट फॉर द फ्यूचर. जहाँ तक रिप्लेसमेंट्स की बात है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ना सलमान बट आ रहा है और ना ही मोहम्मद आसिफ आ रहा है, जो कि मैं अपने उस पे टाइमलाइन पे भी पढ़ रही थी और आई वाज रीडिंग एवरीवेयर एल्स एज वेल. न्यूज़ चैनल्स ने भी चला दिया, कईयों ने थे कि जी यही आ रहे. ये ऐसा नहीं हो रहा. एंड आई थिंक कि बिफोर इस तरह की न्यूज़ देने से पहले एक दफ़ा आप चेक तो कर लिया करो ना कि मतलब ये असल में भी है कि नहीं है. ऐसे ही वो सेंसेशनलाइज करने के लिए कि जी 2 फिक्सर्स गए तो अब 2 फिक्सर्स आ गए, एंड यू नो इस तरह के कमेंट्स, आई वाज रीडिंग देम एंड आई वाज थिंकिंग कि यू नो देयर इज नो ऑथेंटिसिटी टू इट. एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आसिफ तो नहीं होगा ना, दे नीड एन ओपनर. तो वो ओपनर की जगह बॉलर को तो नहीं लाएंगे अपनी टीम में, ये तो कॉमन सेंस है. तो खैर अभी देयर कपल ऑफ मतलब ऑब्वियसली दे आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि किसको लाना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बट whoever it is going to be, they're trying to get a like to like replacement, like in the sense कि शर्जील है तो he's a hard hitter, तो अब वो देख रहे हैं कि जी इन ऑप्शन के पास कौन से ऑप्शंस हैं who can give them the start that he used to give them, because again his role was very important. ऊपर से जब उनको रन्स देता था वो मैचेस जिताए हैं पिछले पूरा टूर्नामेंट जो है वो it was based around him, the starts that he used to give. So they're looking for a hard opener. अभी कोई confirmation नहीं आई, so I can't really take a name and say कि ये बंदा खेल रहा है. If it was your choice, who would you recommend? Who would you suggest? अब पता है मसला क्या है. मसला ये है कि पीछे कोई आपके पास इस तरह के कोई सॉलिड प्लेयर्स नहीं बैठे हुए कि जिसको आप देख के कहो कि हाँ यार ये तो बड़ी ऑब्वियस सी पिक है. आई मीन यू हैड, इफ यू लुकिंग एट द हार्ड हिटर्स, या वो जिनको जरा हम अपनी जुबान में ये भी कहते हैं कि थोड़े टुल्ला टाइप हैं, उसमें आपके पास वही था मुख्तार अहमद और वो नौमान अनवर और वो रफत अल्लाह, वो जो आए थे बुजुर्ग. तो मतलब इन द सेंस कि वो ये सारे प्लेयर्स हैं इन कंटेंशन एज फार एज आई नो, इन द सेंस कि लाइक आई सेड कि दे आर लुकिंग फॉर समबडी जो इस तरह की आपको देना, मतलब क्विक स्टार्ट दे. तो इन्हीं में से कोई होगा, कोई एज सच आउटस्टैंडिंग एक वो पोटेंशियल कैंडिडेट बाहर बैठा नहीं है कि आप उसको देख के कहो कि हाँ यार यही है, बस इसी को पिक करना है. And I think for the middle order they could look at somebody like Fawad Alam who is experienced at international level. वैसे मुझे पर्सनली बिल्कुल जहर लगता है, लेकिन आई थिंक फॉर देम एंड एज अ फील्डर ही कुड बी अ गुड पिक. मैं यही कहने लगी थी कि ये तुमने किस तरह रेकमेंड कर दिया. तुम तो उसके खिलाफ पूरी एक कैंपेन चला रहे हो तो ट्विटर पे. यार ऐसे तो ना कैंपेन नहीं, बस एक पर्सनल डिसलाइक समझ ले, बस ऐसी कोई खास बात तो नहीं है. मैं मजाक कर रही हूँ. अच्छा नहीं ये नहीं है. हाँ ही इज अ गुड. देखो वो वैसे तो जो व्हाटएवर यू से तुम्हारी अपनी पर्सनल डिसलाइक होगी, हर एक की अपनी एक होती है. a lot of people don't like the way he plays, or you know नहीं उसका स्टाइल नहीं पसंद या जो भी नहीं पसंद, लेकिन the fact is कि वो आपका डोमेस्टिक का किंग है. ठीक है, वो मतलब ओवर 50 उसकी एवरेज है और वो स्कोर भी करता है. And in the middle order, yes, he can be useful because he is somebody who tends to rotate the strike and find ways to make runs, you know, hits the gaps वगैरह. तो he could be utilized in that. और वैसे भी वो मतलब आपके डोमेस्टिक का हर बंदा, literally every player that has some kind of a name is actually representing some franchise, but he's not part of it. So yeah, I think he can be a good option. Okay, let's move on. Zainab, so far we've seen in this tournament that Brad Haddin, Owen Morgan and Jason Roy, international batsmen, have done very well and they've taken their franchises to victories. लेकिन हमारे बैट्समैन अभी तक कोई शाइन नहीं कर पाया, और बस बेसिकली हमारे पाकिस्तानी प्लेयर ने कोई अभी तक इतना खास इम्प्रेस नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मे बी हसन अली. So what do you think, is this some kind of trend, या it's just, you know, it's just a matter of the on the day? नहीं देखो, the thing is कि एक तो ये जो the one thing that I picked up on was like, अगर आप उसकी इनिंग्स देख लें, रॉय की देख लें या रायली की देख लें या जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो खेल रहे थे, इनकी गेम अवेयरनेस जो है ना वो मतलब हम लोगों से इतनी सुपीरियर है. एंड बाय दैट आई मीन, बाय गेम अवेयरनेस आई मीन कि फॉर एग्जांपल इफ दे स्टार्ट देयर इनिंग्स
तो they know exactly how to pace their innings कि भाई अब मैंने I've gone after the bad ball, now I'm going to try and rotate the strike. मैं किस तरह अपनी इनिंग्स को बिल्ड करूंगा, कौन से मैं बॉलर्स को टारगेट करूंगा, एक वो तो पूरा जो एक प्लान होता है कि यार अब ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हसन अली करा रहा है तो उसको मैं मतलब I'll just block him or whatever and I'll target a certain bowler. तो वो उनके अंदर वो सेंस बहुत ज्यादा है. हमारे आते हैं वो मैं देख रही थी अब उमर अकमल का एग्जांपल या किसी और का भी, they'll try and go and after the first ball, मतलब पहली बॉल पे आते साथ वो मारने की कोशिश है. वही जो एक सेंसलेस सी अप्रोच होती है ना, तो आई फील वो सबसे बड़ी चीज है जो मैं देखती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द स्किल लेवल कि जी वो हर किस्म की इनोवेटिव शॉट्स खेल सकते हैं, दे हैव देयर शॉट रेंज इज अमेजिंग, और ये सारी चीजें आपको चाहिए एज अ बैट्समैन. यू कांट जस्ट बी लाइक कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त शॉट खेल सकता हूँ अपनी जिंदगी में जो शायद किसी और ने ना खेली हो, तो दैट मेक्स मी इनटू अ फैंटास्टिक प्लेयर. नो, इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर इनिंग्स. तो आई थिंक that's one of the problems जो कि मुझे नजर आई है at least with our players, कि they don't know how to pace themselves. It's very much just block or slog. Sharjeel was somebody who I felt कि improved in that regard, like in the sense कि although उसकी भी pretty much वही game है कि जी जहाँ उसको थोड़ा टांगों पे मिला तो he'll go after the ball, लेकिन उसने अपनी ऑफ साइड गेम को भी थोड़ा इम्प्रूव किया था. पिछले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था भागने दौड़ने की भी. तो आई फील कि ये एक चीज है which it's unfortunate, लेकिन आई होप कि इस बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट कोई ऐसा प्लेयर निकले जैसा फखर जमान वाज प्लेइंग यस्टरडे. उसने 2-3 बड़ी अच्छी शॉट्स मारी एंड उसके बाद वो फिर आउट हो गया. तो आई होप कि कोई इस किस्म का आपके पास प्लेयर निकल जाए जो कि फिर आगे नेशनल टीम में खेले. All right, let's talk a bit about the Karachi Kings. A star-studded lineup. They have all huge names, big names: Pollard, Gale, Bopara, Malik, Babar Azam, but they just don't seem to be clicking on the field. And what do you think the reason is that? हो क्या रहा है उन लोगों के साथ? It is exactly that there are too many big names, and it's not that you can have all the big names in the world and आपकी टीम जो है वो बहुत वो होनी शुरू हो जाएगी. The thing is that they have to click as a unit. आपके पास क्वेटा का एग्जांपल है, ठीक है, वह कहीं किसी ने उनको हवा नहीं दी पूरी टूर्नामेंट में. उससे पहले everybody was like लाहौर, कराची और looking at इस्लामाबाद और पेशावर, obviously उनकी अपनी कल्ट फॉलोइंग है. बट कराची ये जो है क्वेटा की उस तरह से नहीं थी क्योंकि उनके पास चलो वो है पीटरसन हो गया, बट और तो उनके पास उस तरह से कोई बड़ा नाम तो नहीं है ना. तो कराची का ये इशू है कि कराची हैजंट, एक तो उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो अभी तक सही उस तरह से बनी नहीं. मतलब वो मैक्लेरन भी उनके स्क्वाड में है और पोलार्ड तो ऑब्वियसली वाज प्लेइंग, लेकिन उनकी देयर बैटिंग और उस दिन बॉलिंग नहीं क्लिक कोई, उससे एक दिन पहले बैटिंग नहीं क्लिक कोई. दे नीड वन पर्सन. अगर बैटिंग की बात करें, हु बैट्स थ्रू, ठीक है. अभी तक ना संगाकारा ने स्कोर किया है पूरी तरह. बाबर आजम ने जो खेला था, ठीक है, 50 बनाई, बट इट वाज स्लो एज पर टू द T20 स्टैंडर्ड्स, ठीक है. लाइक अगर आप 50 बना रहे हो तो T20 में आपको चाहिए कि आप 50 कोई 25 बॉलों में बनाओ या 30 बॉलों में बनाओ ना. तो वो उस तरह से स्लो था, बट खैर एटलीस्ट ही हैज द एबिलिटी. तो वो अगर थोड़ा सा वो ही कैन इम्प्रूव आई गेस. बट यू नीड संगा. आपके पास गेल है, आपके पास संगाकारा है. these are the kind of players who need that one innings. वो गेल वाली एक इनिंग्स कहाँ है? अभी तक हम पिछले सीजन से वेट कर रहे हैं, वो अभी तक तो हमने नहीं देखी कि जी he goes all guns blazing, बिल्कुल वो जो पागल हो जाता है जिसमें उसकी he's got 100 in every T20 league except PSL. तो I don't know, he's out of touch, he's not played cricket in a while or whatever, but he needs to click. उनको कि इनमें से एक बंदा भी चल जाएगा तो इनकी ये ठीक हो जाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है. फिर बीच में एक और भी चीज है कि अगर एक तरफ से आमिर करा रहा है, ठीक है, फिर इमाद है, बीच में जो इनकी बॉलिंग है वो थोड़ी हल्की है, ठीक है. वो कौन है इनके पास? बोपारा है और वो जो है पोलार्ड करा लेते हैं, बट दे डोंट हैव अ गुड, आई वुड से,
जिस तरह स्पिनर, मतलब इन द सेंस कि इमाद है, लेकिन इमाद आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु लाइक हु स्पिन्स द बॉल. जिस तरह कलंदर्स के पास यासिर शाह है, या फिर वो अबरार जो है, अबरार अहमद, ही इज अ न्यू गाय. तो वो थोड़ा अभी ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा. वो ये तो नहीं है कि वो आते साथ उड़ाना शुरू हो जाएगा. तो एक तो आई फील कि कराची को अपनी थोड़ी कॉम्बिनेशन देनी चाहिए. मैक्लेरन नहीं खेल रहा था, ही इज अ गुड ऑलराउंडर, उसको क्यों नहीं खिलाया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. और दूसरी चीज ये है कि वो थोड़ा मतलब वो यही है कि एक वन पर्सन नीड्स टू बैट थ्रू. उनका स्कोर भी थोड़ा इतना होगा तो फिर बॉलिंग डिफेंड करेगी ना. तो ये बात है उनकी, आई फील. Okay, let's talk about the much maligned Kamran Akmal. In the first match, he played an absolutely amazing innings. और हमने देखा और डोमेस्टिक में भी heavily score कर रहा है. Would you recall him to the T20 team as an opener? यार अब इशू ऑब्वियसली ऊपर से आपके पास मतलब कोई नहीं है. जो था वो चला गया. कामरान का ये है कि कामरान हैज बीन प्लेइंग डोमेस्टिक T20, मतलब डोमेस्टिक में उसने बहुत स्कोर किया है और मतलब वो कंसिस्टेंटली करता आ रहा है. और उस दिन भी उसने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी. जो 88 उसने बनाया था. अगेन वी इफ वी टॉक अबाउट द ओल्ड कामरान अकमल, व्हिच इज लाइक 2009 का, जो मुझे याद है, जिसमें उसने ये जब हम इंग्लैंड में थे एंड द वे ही स्टार्टेड दैट फाइनल की इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका, एंड यू नो ही स्ट्रांग, उसका कट पुल सारे, उसके स्क्वायर पे भी वो स्ट्रांग था और जिस तरह वो मारता था वो अभी भी उसके अंदर वो ग्लिम्पसेस हैं. लेकिन मेरा सिर्फ जो कंसर्न उसके साथ ये है, आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप किसी यंगर प्लेयर में इन्वेस्ट करो, इन द सेंस कि वो फिर आपको आगे लेके चले. ये अब मुझे ये बता दो कि ये अगर यही खेलता रहेगा तो पीछे से आप किस तरह किसी को ग्रूम करोगे और ये कितनी देर खेलता रहेगा. व्हाई नॉट समबडी लाइक यू नो इन द सेंस के जो बाबर की उम्र का हो. अब वही डिपेंड करता है कि है भी कि नहीं. ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि इज देयर एक्चुअली एनीबडी आउट देयर, बिकॉज यू लुक एट ऑल दीज हार्ड हिटर्स एंड दे आर वेरी हिट एंड मिस. चल मतलब नोमान अनवर हो गया या कोई वो हो गया, कोई इस तरह से आउटस्टैंडिंग वो नहीं है. लेकिन अगर इनको कोई मिल जाता है तो फिर इनको उसको ग्रूम करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी टॉक अबाउट शर्जील खान एंड हाउ ही इवॉल्व्ड. 2 साल पहले कहाँ था शर्जील खान? कहीं भी नहीं था. वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो आया, वो खेला एंड ही गॉट कॉन्फिडेंस एंड देन दे ग्रूम्ड हिम लाइक इन द सेंस कि उसको कॉन्फिडेंस मिला, उसने अपनी थोड़ी मेहनत किया, व्हाटएवर, गॉट सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड व्हाटएवर. तो इसी तरह ये दे विल हैव टू गिव अ फुल चांस टू समबडी, जो भी नया बंदा होगा, और उसको ग्रूम करेंगे. यस ही इज डूइंग वेल, बट मेरा आई जस्ट फील के वैसे को हमारी टीम को इस तरह तो नहीं है ना कि हमारी टीम एक बंदे के आने या जाने से चलना शुरू हो जाती है. कि इस वक्त हमारे काफी इश्यूज हैं. एक इशू नहीं है टीम का. पहले एक चीज सॉर्टेड थी, ओपनर, वो भी अब चली गई है. मतलब आपकी बिल्कुल डिसरे में है कि फील्डिंग भी बिल्कुल फारिग है, फिटनेस भी फारिग है, कप्तानी पे भी इश्यूज उठ रहे थे. तो एक चीज तो नहीं है ना, आप नंबर 9 नंबर 8 पे पहुंचे तो किसी एक रीजन की वजह से पहुंचे हो. वो ये रीजन ये है कि कुछ भी नहीं चल रहा. ये नहीं कि सिर्फ आपकी एक चीज नहीं चल रही. तो अब ये है कि मेरा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरा सिर्फ ये है कि आई फील कि दे शुड, इफ कोई है अगर इन द पीछे अगर कोई है तो उसको, या यू नो दे शुड, अभी मैं किया था कि वो आई भी थी स्टेटमेंट के, यू नो ही वांट्स टू टेक टाइम इन लाहौर एंड take time in basically in Pakistan when he's around to look around and basically see spot for talent. तो अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है ये वो, तो that would be great. कि कोई क्योंकि यार हमारी डोमेस्टिक ठीक है, we talk about the top scorers and everything, but let's be realistic about it. It's not the best measure to be picking a player. बहुत से डोमेस्टिक के किंग्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं चलते. तो उसमें मेरे हिसाब से you spot somebody के ठीक है इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, आप उसको चांस दो एंड देन यू ग्रूम हिम. इसी तरह होता है ना. अब इंडिया ने भी इतने प्लेयर्स ग्रूम किए हैं. जडेजा को देखो, धोनी ने स्टार बना दिया, शुरू में वो किस तरह आया था ये वो. तो यू हैव टू लुक एट दैट एस्पेक्ट एंड कंसीडर इट. You spoke about talents and new blood. Who have you seen in PSL so far? Pakistani player जो आपको लगता है कि यार इसने काफी एक इमर्जिंग प्लेयर है जो अच्छा आगे जाके अपना नाम बना सकता है.
आई थिंक वो जो कलंदर्स का बॉलर है इरफान, उसके अंदर पोटेंशियल है. ही इज फास्ट, उसकी ही इज गॉट अ गुड यॉर्कर. एंड एक्चुअली कलंदर्स के अभी तो वो ऑब्वियसली अपने स्क्वाड में डाल नहीं सके, लेकिन आई रिमेम्बर आई स्पोक टू आकिब जावेद एंड ही टोल्ड मी कि ही इज वर्किंग इन द पास्ट 6-7 months. ही इज बीन वर्किंग विद 4 फास्ट बॉलर्स, जिसमें से एक का नाम एहतशाम है. And he's not part of the squad because they had to take one bowler, but वो apparently वो according to Akib he's even better than Asif. ठीक है, अब ये उसने मतलब मुझे नहीं पता एक्साइटमेंट में आके he's given the statement or whether it's actually true, because personally speaking I haven't seen him bowl, but apparently he has the ability to move the ball both ways, और पता नहीं, और वो बहुत accurate है, और उसकी भी इतनी 130s में स्पीड है. तो ये सारे पीछे ये he has all these bowlers. लेकिन PSL के हवाले से I think I liked इरफान. एक दिन उसको काफी मार पड़ी थी, लेकिन अभी यार वो ये तो नहीं है ना कि वो हर मैच में वो आके कोई ब्रिलियंट सी परफॉर्मेंस देगा. थोड़ी पोटेंशियल की हम बात करें, उसमें पोटेंशियल नजर आई है. फिर आपके पास एक्चुअली पीपल वर रियली प्रेजिंग शादाब खान, जो कि उस दिन खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, द लेग स्पिनर. लेकिन अभी उसकी हमने ऐसे उस तरह से परफॉर्मेंस देखी, मे बी इट वाज नर्व्स और व्हाटएवर, बट ही अपेरेंटली हैज अ वेरी गुड गूगली, और लेग ब्रेक जो है वो भी बड़ी उसकी मतलब ब्रेक भी करता है बॉल. तो ये तो अब देखना पड़ेगा कि आगे. आई फील अभी तो थोड़े 3-4 मैचेस हुए हैं, जब टूर्नामेंट एंड होगा तब तक वील गेट मोर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ हु रियली इज इमर्जिंग from this tournament. वैसे आपने आकिब जावेद की बात की, so he was the guy who trained Mohammad Irfan, the original Irfan. So we can say that he has a track record of producing world-class bowlers. So that's very exciting news about Ehtisham and Mohammad Irfan Jr. So we can trust his word definitely. नहीं, आकिब is brilliant. I feel के as you know वो खुद नहीं मानेगा, because you know he didn't want to get a bowling coach की job. He wanted, if he gets something, he wanted कि उसको head coach की मिले. But he does wonderful work with the bowlers and he's very hard working. Like I remember before I came back, so I spoke to him. I wanted to get him on in one of my shows. तो he was like यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं 12 से 2 जो है एक लॉट के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, फिर 4 से 6, and he's been doing that for the past 6 months. Every single day. ये जो नए लड़के आ रहे हैं आपके टैलेंट हंट से इन्होंने निकाले, he's been working with them. You know, these are the guys who've never played first class cricket. They've never actually had a proper system to which you know they can go through and come out of. तो वो अब Akib has solely been working with them, उनके एक्शन के ऊपर, उनकी फिटनेस के ऊपर, उनके you know पेस के ऊपर. एंड ही टोल्ड मी कि ये सारी वैरायटी है. इरफान का बताया कि वो बहुत अच्छी यॉर्कर्स कराता है. फिर ये जो है एहतशाम की तो बहुत तारीफ कर रहा था. तो इट्स एक्साइटिंग, एंड यस ही इज समबडी who has an understanding of bowling. Okay, let's look at broader issues apart from PSL. Azhar Ali, as we all know, has been removed as one-day captain for Sarfraz, but it was quite a surprise कि उसने टेस्ट की वाइस कैप्टनसी भी छोड़ दी. So what do you feel about this decision of his? Do you feel it's a rash call, or do you think कि अब सरफराज का ट्रैक पकड़ लिया और उसको ही लेके चलना चाहिए? यार देखो, हमारे मुल्क में ना जो भी कैप्टन बनता है ना, मैं तो आई फील रियली बैड फॉर हिम. मतलब इन द सेंस कि उस बेचारे की बहुत एक मुश्किल जिसे कहते हैं जॉब है, कि अगर आप हारोगे भी तो सारा ब्लेम आप पे आता है. ऑब्वियसली जीतोगे भी तो आपको क्रेडिट भी मिलता है, लेकिन हम कम ही आजकल तो कम ही जीत रहे हैं. लेकिन इन द सेंस के अजहर, ऑब्वियसली यू सी वी बीन कंसिस्टेंटली लूजिंग इन द वन डेज. ये इंग्लैंड की सीरीज भी हम हार गए, फिर अब ये ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, उससे पहले हम न्यूजीलैंड से भी ओडीआईज में हारे थे. तो वो काफी बायलैटरल सीरीज अंडर हिज कैप्टनसी वी हैव लॉस्ट. I'm not saying that the direct blame goes to him. I'm just saying that somebody has to be accountable, and it's unfortunately him in this regard. तो वो ये हुआ है, और वो obviously बेचारा काफी pressure में भी था, because you know how it is, everybody was talking about it and media में भी बातें चल गई कि जी ये इसको हटाओ और ये और वो इस तरह करके. तो वो I think कि उसने फिर यही decide किया कि maybe this is something that he doesn't want to deal with that. You know, he doesn't want to deal with this targeted जिसे कहते हैं
कैरेक्टर असैसिनेशन कैरेक्टर असैसिनेशन. तो कैरेक्टर असैसिनेशन की जी ये क्या है ये वो, तो वो आई मीन इट्स आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन है. लाइक ही प्रॉब्ली फील्स कि ठीक है भाई ये नहीं करना तो फिर ये भी दफा है टाइप उस किस्म का. तो लेकिन ये है कि अभी आपके पास टेस्ट में ये भी है ना कि क्या क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब मिसबा अगर तो फॉर एग्जांपल वो वेस्ट इंडीज की सीरीज खेल लेता है जो कि लग रहा है कि खेलेगा, उसके बाद अगर वो अपनी रिटायरमेंट ले लेता है, तो ये भी बीच में एक बात चल रही थी कि शायद वो यूनुस खान को 1 साल के लिए कैप्टन बना दे. अब ये भी एक अजीब बात है, बट चलो दिस वाज आल्सो गोइंग अराउंड कि शायद वो 1 साल के लिए उसको बना दे ताकि वो आगे किसी को ग्रूम कर ले ये वो. बट टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस वाइज तो अजहर अली इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर. उससे ज्यादा तो कोई कंसिस्टेंट है ही नहीं उसमें. तो आई डू फील बैड फॉर हिम, लेकिन एक तरह से आई फील कि उसके लिए अच्छा भी है कि यू नो वो कैप्टनसी जो है उसके अब दिमाग से हट गई है. आई डोंट नो इफ ही फिट्स इन वेल एज एन ओडीआई प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आजकल की ओडीआई की डिमांड्स जो है बिल्कुल ही क्रेजी हो गई है. ओडीआई अब तो पीपल आर teams are playing ODIs like T20s as well, except it's a longer format. But if you look at the scoring rate, ठीक है, वो भी इतना ही है. अगर आप 400 कर रहे हो, 350 कर रहे हो, 7 के 8 के ओवर 7 रन्स पर ओवर पे जा रहे हो, यू नो, तो वो इसका मतलब है कि इसका मतलब बेसिकली यही है कि जी शुरू में भी आपके पास वो उस तरह के हो प्लेयर्स जो कि हु कैन हिट आउट, हु कैन रोटेट, हु कैन, फिर बीच में भी आपके पास एक मैक्सवेल टाइप का कोई हो और एंड में आपके पास फिनिशर भी हो. वो वाला तो वो 90s वाली क्रिकेट तो चली गई ना, वो वाली कि जी आप आराम से जी आखिरी 10 ओवरों में टारगेट करेंगे कि जिस तरह हम करते थे कि जी आखिरी 10 ओवरों को. उस वक्त आपके पास उस तरह के प्लेयर्स भी थे, मोइन खान था, रजाक था, who could afford to do that, but now we actually don't even have that, so we end up making 250, चाहे ऊपर से कोई मारे जो या एंड बीच में कोई एक आध मार ले. तो बस ये चीजें हैं सारी. And let's talk about you on a personal front. What advice would you give to budding youngsters who want to come into the field of sports journalism or who want to move ahead in this field? आपके लिए उनके लिए क्या advice है? मेरे लिए मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि if you're passionate about something, then you should always follow it. There's no you shouldn't ever have any kind of doubt कि whether I'll be able to make it or not make it. एक तो first of all hard work. There are no shortcuts in life. ठीक है, ये तो you'll have to understand that. If you're looking to become a journalist or a presenter or whatever, or any other field actually, you have to be prepared to work really hard, and that means sacrificing on your social life, sacrificing on so many things like family commitments. बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपकी रह जाती हैं बीच में, but then if you want to achieve, then you have to make these sacrifices. And the other thing is your ethics. ठीक है, you should मतलब I know कि हमारे मीडिया में it operates in a different way, बहुत सी चीजें चलती हैं and everything, लेकिन आपको खुद पर्सनली जो है ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अपनी एथिक्स पे. It should never be a case of you wanting publicity or any kind of that at the cost of this or ratings or whatever, because the fact of the matter is that if you're good enough, ठीक है, and if you have that thing in you to improve and evolve, so you will make it. Sooner or later you will make it. So this is my message, that you should be honest in your work, and दूसरा ये कि you have to be hard working, and if you're talented, अगर आपके अंदर है उस तरह का, तो you will be successful. And what about your future plans? Where are we going to see you next, and where are you headed, and what have you got in mind? यार अभी तो I don't know, like in the sense कि I'm just doing this PSL, which is taken over my life, because it's like a constant rut where you're waking up, going to the ground, having 2 matches, coming back, sleeping, then the same thing over and over. You can't even keep track of the time or the day. So abhi I'm doing this, but I've been covering like different series. I went to Australia. Before that I was in Dubai for West Indies series, फिर उससे पहले England. So I mean that's been really good. I wanted to do all these tours to get a feel of what it's like. It's important to have that experience as well.
आगे obviously Champions Trophy है, so I'm looking to maybe cover that. I don't know, but I don't plan too much, to be honest. I think I've become better in planning. तो मैं बहुत ही फारिग थी इस डिपार्टमेंट में. I feel पहले बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैं बस मतलब जो हो रहा है दिन में वो हो रहा है. अब थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया because obviously I've got some experience. तो अभी तो मैं यही कर रही हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है. I mean, right now I just want to continue doing this. Okay, now the final question of this podcast, and you have to keep the host's allegiance in mind. Who is going to win HPL PSL 2017? तुम ऐसे घटिया सवाल क्यों करते हो? मैं जानना चाहता हूँ, पूरी दुनिया जानना चाहती है. और ये इधर उधर नहीं. You have to say yes, one team, this team is going to win it. I am 100% sure this team is going to win it. ये तुमने बड़ा अच्छा. मैं तुम्हें दो जवाब दे देती हूँ, नॉट दो टीम्स. नहीं, मैं दो टीम्स, बट आई कैन टेल यू. ओके, इफ यू टॉक अबाउट नहीं, चलो एक ही जवाब देती हूँ. ठीक है. आई डोंट नो. देखो, ओके, before I make the statement, and you know I'll be sounding very political. आपने याद रखना कि ये टिकर चलने वाले और ये हेडलाइन बनने वाली है, so be very sure of your answer. नहीं, फिर मैं नहीं कोई जवाब दे रही. अभी मुझे फिर आगे से तुम चाहते हो कि मुझे गालियां पड़े हैं. नहीं यार, जो है ऑलरेडी. हाँ, तुम यही चाहते हो और कुछ नहीं है. क्योंकि मैं इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब है कि सब मुझे जो है ना टैग कर करके आगे से. अच्छा, आप ये बता दें कि फाइनल में कौन होगा और कौन फाइनल जीत सकता है. जस्ट लाइक मेक इट लाइक दैट. फाइनल में कौन होगा? देखो, मुझे ज़ल्मी की टीम स्ट्रांग लगती है, सो आई फील कि ज़ल्मी होगा. ठीक है. और उसका रीजन भी मैं एक वर्ड में ये बता देती हूँ. मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. यू कांट डिस्काउंट Hassan Ali and Mohammad Asghar and Sammy's there to lead the team, and like Wahab Riaz, उनका bowling attack जो है वो काफी तगड़ा है. and I feel कि इस लीग में या T20 उसमें आपकी bowling काफी मैटर करती है. तो I feel Zalmi will be there. ठीक है. और दूसरा, अब मुझे ये समझ नहीं. I mean, I am thinking, if you look at last time, याद है इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह शुरू में बहुत मैचेस हारा था और फिर एकदम से उनकी टीम जो है शुरू के 3-4 मैचेस हारे थे, फिर उसके बाद वो जीतना शुरू हो गए थे. I think they won 5 in a row to the final, to the trophy. हाँ, exactly. तो मैं I don't want to, मतलब going by the form, Karachi is probably like whatever, वो बहुत हल्की लग रही है एवरीथिंग, लेकिन मुझे ये फील होता है कि इतने बड़े नाम है, दे हैव टू क्लिक. इट्स मतलब द लॉ ऑफ एवरेजेस, इफ यू लुक एट इट डजंट मेक सेंस कि वो अभी तक जो है उनका कोई बंदा चल नहीं रहा. तो अगर इफ दे गेट देयर रिदम, तो मुझे तो लगता है वो भी हो सकता है. बट देन यू हैव कलंदर्स व्हिच आर अनप्रेडिक्टेबल. कलंदर्स, बाय द वे, कलंदर्स जो है ना, मुझे तो लगता है कि देयर आर रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. मतलब कि मुझे लगता है उनके अंदर वही रूह है, बिल्कुल वही उनका सीन है कि वो या एकदम से कोई ब्रिलियंट भी हो जाएंगे और फिर बहुत ही जिस तरह कल तो इट वाज quite shameful the way they were falling apart, but then they put up a good fight back to bring it to what it was. So मुझे सिर्फ ये है कि if they अगर अपना ये middle order sort out कर लें थोड़ा सा, तो इनका भी है. इस्लामाबाद यूनाइटेड, they have a lot of issues right now, replacements वगैरह का वो है, but then वसीम भाई and वो you never know with these guys. Misbah as the captain, Misbah played a very good innings that day. हो सकता है कि whatever has happened with them, it gives them that extra motivation to do well. Quetta is Quetta, वो तो इतने consistent हैं, उनको you can never really rule them out. तो मैं बस कह रही हूँ कि ज़ल्मी आई थिंक होगा फाइनल में. आगे तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं आई कांट से फॉर श्योर कि दिस इज T20, यू प्ले ऑन द डे एंड यू विन. यही बात, यू कांट गिव अ प्लेयर वो इसमें. चलो, you have played that with a very straight bat, and I think you have survived my question, so thank you so much. लेकिन Zalmi is there. You are forgetting that I am in this field, so I know how to leave the questions well. Exactly. And on that note, we just like to conclude the podcast. I'd like to thank Zainab so much for joining us. Really, thank you so much, Zainab, for making time for us in your
unbelievably hectic schedule, and I know it's your birthday tomorrow, so happy birthday to you too as well if we don't get to see each other. And thank you so much once again for joining us. Thank you, AZ. I had a lot of fun. Thank you.